Hello students, good morning. Myself Neha Shukla, your English teacher from KP Public School, and today I will tell you exception of changing tense in indirect speech. Okay? Then first I will tell you universal truth. When sentences of direct speech will universal truth, जब direct speech के sentences universal truth होंगे तब वो change नहीं किए जाएंगे. As you can see example, the teacher said the earth moves round the sun. Okay, then the teacher said that the earth moves round the sun. Okay, next is one more example. They said the sun rises in the east. They said the sun rises in the east. Then it will be changed. They said that the sun rises in the east. Okay, there will be no change of any universal truth. And second one is, you can see historical fact. As you can say that he said Kalidas is the Shakespeare of India. He said Kalidas is the Shakespeare of India. Then we can say that he said that Kalidas is the Shakespeare of India. We cannot change the fact, we cannot change the universal truth. This is the reason we will not change its direct speech. Okay? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, एंड यू कैन सी दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अगर हम इस एक्सेप्शन को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि कालिदास, अब इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट. तो कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. नो, दिस इज रॉन्ग. कालिदास इज मीन्स ही इज नाउ. अभी भी उनको ये माना जाता है कि कालिदास जो है वो इंडिया के, जैसे इंग्लिश लिटरेचर के विलियम शेक्सपियर थे, वैसे ही इंडिया में कालिदास. ओके, नेक्स्ट इज हैबिचुअल फैक्ट. हैबिचुअल फैक्ट जो होते हैं उसमें भी चेंज नहीं किया जाता है. एज यू कैन सी एग्जाम्पल, हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. His father said, I get up early in the morning daily. His father said that he get up early in the morning daily. And you can see, his father said that he gets up early in the morning daily. Because ये उनके फादर की हैबिट बताई जा रही है ना, कि हिज फादर सेड, कि उनके पिता ने कहा कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग डेली वो बहुत जल्दी उठते हैं. तो ये हैबिचुअल फैक्ट हो गया. देन वी विल नॉट चेंज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड हैबिचुअल फैक्ट. ओके, दीज आर एक्सेप्शन ऑफ चेंजिंग टेंस. ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ will we change interrogative sentences into indirect speech. Means when direct speech will be in interrogative sentences. So today we will learn how will we change these interrogative sentences into indirect speech. Okay, first of all let me tell you there are two types of interrogative sentences. Okay, first one is yes or no type questions. Second one WH type questions. Yes or no type questions means when sentence will be start with helping verb, and WH type questions when sentence will be start with WH type or WH words, means whom, which, how, where. Okay, that is called WH type questions. And one thing more, when we ask WH type questions, then it does not take a long sentence to answer it. जब हम yes और नो टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो उसका आंसर आप ओनली yes और नो में दे सकते हो. एज आई विल आस्क, आर यू गोइंग? नो, यस. आर यू कमिंग? यस, नो. तो ऐसे सेंटेंसेज जिनका आंसर आप ओनली yes और नो में दे सकते हो उन्हें yes और नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड WH टाइप क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर आपको देने के लिए कुछ आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है. एज वेयर आर यू गोइंग, यू कैन नॉट आंसर इट इन yes और नो. जब आपसे कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हो तो आप उसका आंसर सिर्फ yes और नो में नहीं दे सकते हो. उसका आंसर देने के लिए आपको कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा. आई एम गोइंग मार्केट, आई एम गोइंग स्कूल, एंड व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव. Okay, that is called WH type questions.
Okay, so today we will learn if indirect speech will be in interrogative sentences, then how will we change it. Okay, let's see. Rule number 1. Change the reporting verb say or tell into ask or inquire. As I have already told you that when reporting verb will be say or tell, अभी पहले आपको बताया गया था कि ना जब इसके पहले वीडियो में कि हम रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में चेंज करते हैं इफ़ देयर विल बी ऑब्जेक्ट. अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम से को टेल में चेंज कर देंगे. बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बट डायरेक्ट स्पीच अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो हम उसमें से को टेल में नहीं चेंज करेंगे, और अगर टेल रहेगा तो भी हम उसको से मतलब से और टेल हम उसमें ऐड ही नहीं करते. हम से और टेल को आस्क या फिर इंक्वायर में चेंज करेंगे. ओके, वी कैन यूज बोथ. वी कैन यूज आस्क और इंक्वायर. एंड व्हेन इट विल बी सेड देन वी विल यूज आस्क्ड or inquired, and when it will be said or told, say or told, tell, तो हम क्या चेंज करेंगे इसमें ask और inquire. तो rule number 1, we will change reporting verb say or tell into ask or inquire. Okay. Rule number 2, change interrogative sentence into affirmative. You have to just learn these rules. You have to चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव. तो जो सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं, जब हम उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब हम उन्हें अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं. ओके, दे विल नॉट बी रिमेन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दे विल बी चेंज इन असर्टिव सेंटेंस. ओके. रूल नंबर 3, द रूल्स ऑफ चेंजिंग पर्सन मस्ट बी ऑब्जर्व. The rules of changing person and tense must be observed. कि इसके पहले जो आपको चेंजिंग पर्सन एंड चेंजिंग टेंस रूल बताया गया था वो भी ऑब्जर्व, आप पूरी तरह उसको ऑब्जर्व करेंगे, फॉलो करेंगे. एंड फोर्थ, कंजक्शन दैट इज नॉट यूज. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट यूज कंजक्शन दैट. असर्टिव में जैसे आप कंजक्शन लगाते थे, जैसे दे सेड दैट वी आर, दे सेड दैट the earth moves round the sun, but in interrogative sentences you will not use conjunction that. Okay, now 5, we will use if or whether as conjunction. अब ये होता है ना कि जब हम कंजक्शन दैट नहीं यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंजक्शन दैट के प्लेस पे आप इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे. ओके, इफ़ भी आपका राइट होगा, वेदर भी आपका राइट होगा. एंड वन थिंग मोर, we will use if or whether as conjunction only in yes or no type questions. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1 में रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, yes और no टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तभी हम उसमें कंजक्शन if या whether का यूज़ करेंगे. ओके, WH टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तब हम उसमें कंजक्शन if या whether का यूज़ नहीं करेंगे. ओके. नेक्स्ट, use helping verb after subject. As we know very well, when sentence will be in assertive, then we will use helping verb after subject. जैसा हम सबको पता है कि जब हम assertive sentence राइट करते हैं तो हम helping verb को subject के बाद राइट करते हैं. वैसे ही इसमें भी जब आप इंट्रोगेटिव से assertive बनाएंगे तो आप helping verb को subject के बाद राइट करेंगे. ओके. नेक्स्ट, we will not use any connective word in WH questions. इसके पहले आपको जैसे मैंने बताया कि आप इफ़ या वेदर कंजक्शन के रूप में ऐसे ही सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जब वो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तब आप वहाँ पे इफ़ या वेदर एज कंजक्शन यूज़ करेंगे. बट जब आपका सेंटेंस WH से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, होम, विच, वेयर, हाउ ना, तो आप उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना लेंगे. तब आप वहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे, आप उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे. एज आई विल टेल यू, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम.
he said to me what is your name. ओके, तो जैसे पहले मैंने आपको बताया we will change say or tell into ask or inquire. हम से और टेल को आस्क या इंक्वायर में चेंज करेंगे. अभी मैं आपको फार्मूला नंबर 2 जो रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया WH टाइप क्वेश्चन, उसका एग्जांपल बता रही हूँ. ओके, तो वी विल चेंज से और टेल इनटू आस्क और इंक्वायर. तो ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड, सेड टू को हटाएंगे हम तो आस्क्ड लगाएंगे. ही आस्क्ड मी. ओके, क्लियर. अब इसके बाद जहाँ पे आप दैट का यूज़ करते थे, दो सेंटेंसेस को, कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड होता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. जब हम कंजक्शन जहाँ पे दैट का यूज़ करते थे, मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे तब आप वहाँ पे कंजक्शन के रूप में जो आपका WH वर्ड रहेगा, तो व्हाट है ना WH वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड. तो ही आस्क्ड मी व्हाट, कंजक्शन हो गया. इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे. तो व्हाट योर नेम था ना, यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी. तो व्हाट माई नेम एंड इट विल बी चेंज इनटू वॉच, और इट जो है वो वॉच में चेंज हो जाएगा. ओके, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉच. ओके, एंड one example, Ram said to Sita, are you going to market? Ram said to Sita, are you going to market? तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको. सबसे पहले Ram said to will be changed into asked. Ram asked Sita. ओके, राम आस्क्ड सीता. और अभी मैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, यस और नो टाइप क्वेश्चन करें, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. राम आस्क्ड सीता, तो हम यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर. तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे. राम आस्क्ड सीता इफ, एंड यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. यू हम सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी. इफ सी वॉज गोइंग टू मार्केट, इस था तो हम इसको वॉज बनाएंगे. इफ सी वॉज गोइंग टू मार्केट. ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एस और नो टाइप क्वेश्चंस. टीचर, द टीचर सेड, आर दे कमिंग टू स्कूल. द टीचर सेड, आर दे कमिंग टू स्कूल. The teacher asked if they were coming to school. One more example. The teacher asked to Ram, the teacher said to Ram, have you done your homework? The teacher said to Ram, have you done your homework? तो क्या हो जाएगा इसका, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही हैड डन हिज होमवर्क. द टीचर आस्क्ड राम इफ ही हैड डन हिज होमवर्क. ओके, तो टुडे आई विल एक्सप्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ विल वी चेंज direct speech when it will be in interrogative sentences into indirect speech. Okay, so in next video I will tell all examples, I will give you many examples of interrogative sentences. After seeing that you will be confirmed. Okay, that's all for today.